Okay, good morning guys. So we have discussed earlier about Rolle's theorem. वो थ्योरम था तुम्हारा जो डेरिवेटिव्स है उसके ऊपर एक थ्योरम था डिफरेंशिएशन के ऊपर. दैट इज आवर रोल्स थ्योरम. ए फंक्शन इफ ए फंक्शन f defined within a to b closed interval and range is a real number is continuous in between those a to b closed interval and differentiable at a comma b open interval যদি differentiable হয় then there exists a point c in between a and b where f dash c equal to 0. So that's what our Rolle's theorem. So in today's lecture we'll discuss about very important theorem, that is mean value theorem. It is the extension of Rolle's theorem. Rolle's theorem যেটো আছে তাৰে extension হয় to so called mean value theorem, MVT in short form. important है, बोर्ड में तो क्वेश्चन आता ही आता है, तो एंट्रेंस में भी कभी कभी पूछ लेता है दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम MVT या Rolle's theorem. एक को क्वेश्चन आता ही है बोर्ड में. तो चेक द थ्योरम. लेट f such that सपोज a को b क्लोज इंटरवल पे f ऐसे f फंक्शन एक फंक्शन है और डिफाइन किया हुआ है b ये कंटिन्यूअस. इस फंक्शन कंटिन्यूअस होगा continuous function on this closed interval a comma b and differentiable on a comma b open interval. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. ये होगा तो क्या होगा? Then there exists some c in a comma b, मतलब a comma b के बीच एक c एग्जिस्ट करेगा in a comma b such that f dash c should be equal f of b minus f of a by b minus a. This condition should be satisfied. f dash c का वैल्यू a होना जरूरी है क्योंकि यही होगा f of b minus f of a divided by b minus a according to Rolle's theorem. And c should be lies between a comma b. a comma b के बीच c लाई करेगा और f dash c का a हो गया, वहाँ से तुमको c मिल जाएगा. Well, you have to check that whether c lies between this or not. If c lies between a comma b के इंटरवल के बीच आ गए c, then we will conclude that function is following the mean value theorem. तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन ऑफ Rolle's theorem. Rolle's theorem में क्या था? f of a equal to f of b और हमें वहाँ पर चेक करना था f dash c equal to 0. यहाँ पर देखो f of b और f of a इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा? अपने आप ही f dash c 0 हो जाएगा. आराम से मीन वैल्यू थ्योरम से ये निकाल सकते हो. Rolle's theorem you can find. अच्छे से देखो, ध्यान से देखो. इफ f of a equal to f of b ये आ गया, यहाँ पर पुट कर दो f of b equal to f of a, you will get f dash c equal to 0. Then onwards you will get a c value of c which should be lies between a comma b. That was our Rolle's theorem. So সেইকাৰণে this mean value theorem MVT is known as the extension of Rolle's theorem. Actually mean value theorem of part Rolle's theorem तो बोले कोई सा corollary type হয়. That was easier one, but ইয়াতে তোমাৰ f dash c লৈকে চেক কৰিব লাগিব. আমি যেতিয়া এটা নিউমেৰিকেল সাম তেতিয়া ভালকে বুজি পাম most probably.
तो एक न्यूमेरिकल करके दिखते हैं कैसे करते हैं, कैसे ये थ्योरम वेरीफाई करते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में तो डायरेक्ट थ्योरम पूछता नहीं है, लेकिन दे आस्क अस टू वेरीफाई द थ्योरम। There's a question, verify MVT, that is मीन वैल्यू थ्योरम। मैं यहाँ पर शॉर्टकट लिख रहा हूँ, MVT बोल के लिख रहा हूँ, तो समझ लेना ये वाला मीन वैल्यू थ्योरम है। MVT मतलब मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, वेरीफाई MVT फॉर फंक्शन, what is the function given, fx equal to x square in the interval टू कॉमा 4। क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें MVT वेरीफाई करने दिया विद इन द इंटरवल ऑफ 2,4। लेट्स चेक हाउ वी कैन वेरीफाई। यहाँ पर जो इंटरवल दिया हुआ है, हमें उस इंटरवल के हिसाब से जो पॉइंट दिया हुआ है 2 and 4, उससे हम f(2) निकालना पड़ेगा। इट बिकम 4 एंड f(4) विल बी बिकम 4 स्क्वायर, दैट इज 16। ये आ गया। पहला क्या दिया हुआ है, दिस फंक्शन MVT वेरीफाई करने दिया होगा fx इक्वल टू x स्क्वायर इज, दिस इज ए algebraic function. I am already told you guys that जो algebraic function होता है वो हमेशा continuous होता है within the, मतलब रियल नंबर में, where x belongs to R is a continuous in 2,4 and ये कंटिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल ऑन 2,4। ये तो होगा ही होगा क्योंकि दिस इज अ एल्जेब्रिक फंक्शन। तो यहाँ पर तुम कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक कर सकते हो, तो इक्वल आ जाएगा, ऐसे भी एल्जेब्रिक फंक्शन है। और डेरिवेटिव के जो डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा उसको चेक करने के लिए LHT एंड RHT फाइंड करना पड़ेगा, वो तो आसानी से हो जाएगा। वही सब अलजेब्रिक फंक्शन होता है, x स्क्वायर है तो आसानी से हो जाएगा। इट विल बी डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस। फर्स्ट कंडीशन हमने MVT का जो फॉलो कर, मतलब जो चाहिए दिखाने के लिए वेरीफाई द MVT मीन वैल्यू थ्योरम, फर्स्ट वाला हो गया, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हो गया विद इन द लिमिट। जो लिमिट दिया हुआ है उस पर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिएबिलिटी मतलब शो कर रहे हैं फंक्शन। सो लेट्स चेक वेदर देयर एग्जिस्ट C विद इन द लिमिट और नॉट। अभी हमें क्या करना है, C एक वैल्यू चेक करना है वेदर इट सेटिस्फाई द कंडीशन। सो C कैसे निकालेंगे, C के लिए पहले तुम f' निकाल लो। व्हाट विल बी द f'? x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 2x। तो f' व्हाट विल बी योर f'? 2 of C, मतलब x को C से रिप्लेस कर दो, आसानी से हो जाएगा। अब क्या होगा, ये वाला तो हमें मिल गया f', बट रोल्स थ्योरम के हिसाब से f' क्या होना चाहिए, f of b माइनस f of a बाई b माइनस a इक्वल टू दैट f', तो 2c। सो यहाँ तक दिख नहीं रहा, आई एम राइटिंग हियर, ओके, f of b माइनस f of a बाई b माइनस a इक्वल टू 2c। सो हमें f of b क्या मिला हुआ है, ये वाला 16 f of b 16 माइनस 4 बाई 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 of c। सो देख सकते हो 16 माइनस 4 बाई 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 of c। 16 माइनस 4 का वैल्यू आता है 12 बाई 2 इक्वल टू 2c। यहाँ से आ गया 6 इक्वल टू 2c, देयरफॉर c इक्वल टू 3। c का वैल्यू आ गया 3
वी गोट द वैल्यू ऑफ C एज 3। तो अब हमें क्या चेक करना पड़ेगा, लास्ट वाला, टू वेरीफाई MVT वेदर दिस C शुड लाइज बिटवीन द इंटरवल और नॉट। यस ऑफ कोर्स इट लाइज बिटवीन 2 and 4। 3 क्या होता है, 2 और 4 का बीच का वैल्यू 3 होता है, वो तो हमें ऐसे ही पता है, दैट्स द रियल नंबर। सो तो MVT वेरीफाई हो गया। सो वेरीफाइड ऐसे ही हो जाएगा, लाइज बिटवीन दिस 2 and 4। वहाँ से ही पता चलता है कि ये वाला MVT मतलब मीन वैल्यू थ्योरम फॉलो कर रहा है और वेरिफिकेशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम हो गया। ओके, होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। So from your miscellaneous exercise, we'll do a few more numericals, then we'll stop discussing this chapter, that is differentiability and continuity, जो वाला चैप्टर था हमारा, चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर NCERT बुक। मतलब वो वर्चुअली हम ख़त्म कर देंगे, मतलब तुम लोगों का जो डाउट है वो लेके आना, या जब भी कन्फ्यूजन है या जब हम मतलब फेस टू फेस क्लास ले लेंगे तब थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। I think 100% student are not watching the video. গোটেইকেইটা ষ্টুডেণ্টে ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই। দেট ৱাজ ভেৰি টাফ চিটুৱেশ্যন। এতিয়া কলেজটো খুলিলে কেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হয় উই डोंट नो। हमारा कोरोना तो दिने दिने बढ़ी है। कोरोना का जो नंबर है वो दिन भर मतलब बढ़ते जा रहा है, कब तक कमेगा हमें नहीं मालूम। तो बेटर स्मार्टली কৈছোঁ, स्मार्टली মানে বস্তুটো তোমালোকে হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰা, অলপ কষ্ট কৰা। এতিয়া মোবাইল চোবাইল আছে, ইণ্টাৰনেট আছে, সব ফেচিলিটিজ পাই আছা, আমি প্ৰভাইড কৰিব ট্ৰাই কৰি আছোঁ। ইউ কণ্টেক্ট মি या কণ্টেক্ট আছ টু নো হোৱাটছ দ্য প্ৰব্লেম। ओके, लेट्स सी फ्यू मोर क्वेश्चन फ्रॉम द मिसलेनियस एक्सरसाइज। ये जब पूरा चैप्टर नंबर 5 में इतना सारा चीज़ हमने सीख लिया, तो क्या क्या सीखा? पहले कंटिन्यूटी सीखा, कंटिन्यूटी में फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। कहीं पर ऐसा भी सीखा है दैट गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो वहाँ पर हमें जो अननोन दिया हुआ था 1 2 ए या बी या के, कुछ समय ऐसा क्वेश्चन भी था, वो सब क्या निकालना पड़ता था। तो फंक्शन इज continuous at x equal to 0 या x equal to 3 2 such like numerical we have done। और उसके बाद आ गया डिफरेंटिबिलिटी। पहले तो डिफरेंटिबिलिटी होगा कि नहीं होगा कैसे चेक करते हैं वो देखा था हमने, LHD RHD कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद आ गया डेरिवेटिव्स और टू सम एक्सटेंट डिफरेंशिएशन आ गए हैं लगभग, तुम लोगों को मिला था। वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, सब का मिला हुआ है। उसके बाद पैरामीट्रिक का भी मिला हुआ है, कहीं कहीं पर ऐसे भी हमें सब्सटीट्यूट करना पड़े, उस टाइप ऑफ क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है बाय यूजिंग द सब्सटीट्यूशन मेथड। दैट मीन दोनों साइड पे लॉग लेके किया हुआ है एक, और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन भी हुआ है। उसके बाद एक आया पैरामीट्रिक फॉर्म, उसका भी हमने डिफ्रेंशिएशन निकाला है। लास्ट क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट डबल डिफ्रेंशिएशन, दैट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, वो भी हो चुका है। ये वाला मतलब वी आर गोइंग टू एंड दिस टॉपिक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, दैट इज डिफ्रेंशिएशन का एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। सो बी अटेंटिव एंड बी सीरियस गाइज। दिस टॉपिक आर नॉट क्वाइट इजी, इमानो इजी নহয় বস্তুবোৰ। যদি ক্লাছ নকৰা চেইনটো যদি মানে ব্ৰেক হৈ যায় দেন यू विल फील डिफिकल्टीज आ जाएगा तुम पे। ओके, रिक्वेस्ट करिছো सबके क्लास কৰা, अटेंड द क्लासेस, watch the videos lecture, watch the videos given in YouTube channel। okay, let's discuss one or two questions from miscellaneous exercise। differentiate the following with respect to x।
differentiate the following with respect to x। x के हिसाब से इसको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। हाउ विल डिफ्रेंशिएट? ओके, लेट मी राइट द क्वेश्चन। टेन इनवर्स ऑफ, क्वेश्चन लिखा ही नहीं, साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। पहले इसको ले लो, लेट एफ एक्स या वाई ले सकते हो, वाई इक्वल टू दिस टेन इनवर्स ऑफ, वाई इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, ये देखो साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ तो डायरेक्टली डिफ्रेंशिएशन निकालने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये वाला टर्म, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालो, बहुत ही मतलब लंबा हो जाएगा। दैट विल बी द लॉन्ग प्रोसीड्यूर। तो इसको कैसे आसानी से कर सकते हैं, यू हैव टू थिंक। यहाँ देखो साइन एक्स है एंड 1 प्लस कॉस एक्स, कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद आ रहा है तो हमें इसको मतलब ये जो अंदर वाला ब्रैकेट वाला टर्म है उसको 10 में कन्वर्ट करें तो आसान हो जाएगा। टेन इनवर्स ऑफ 10 वो वाला आ जाएगा, क्योंकि हमने इनवर्स का ऑलरेडी किया हुआ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो व्हाट वी कैन डू इज टेन इनवर्स ऑफ, यहाँ देखो साइन एक्स को 2 ऑफ साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, कैन वी राइट लाइक दिस? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, क्योंकि x को 2x जैसा कंसिडर कर लो तो यहाँ पर x के जगह x बाई 2 आ जाएगा। ओके, सिमिलरली इसको 1 प्लस कॉस 2x कंसिडर कर लो तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दिस फॉर्मूला। सो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर एंड कॉस कैंसिल हो जाएगा। सो बाकी रहेगा टेन इनवर्स ऑफ 10x बाई 2 which is equal to x by 2। सो कितना आसान हो गया, we are getting y equal to x by 2। it is too easy, therefore हमें तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, dy by dx। सो dy by dx विल बी x by 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, हाफ ऑब्वियसली, which is our फाइनल रिजल्ट। बहुत ही आसान है यार। डायरेक्ट dy by dx निकालते तो क्या होता, बहुत ही लंबा एक प्रोसीड्यूर आ जाता, उसके बाद यही आता रिजल्ट विल बी द सेम, बट योर प्रोसीड्यूर विल बी द हायर स्टेप, ज़्यादा स्टेप होता उस पर। और एक न्यूमेरिकल देखते हैं। Let's check another questions. Differentiate sin a square x with respect to, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ध्यान से देखना। विथ रिस्पेक्ट टू ई पावर कॉस एक्स, यहाँ पर ऐसा नहीं कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, हमें कैसे क्या करना है, इस फंक्शन का साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। ओके, लेट्स चेक द सॉल्यूशन। लेट ux, इसको हमने ux ले लिया, सपोज साइन स्क्वायर एक्स, इसको ux ले लिया, एंड dx इक्वल टू तुम्हारा ई पावर कॉस एक्स। व्हाट वी नीड टू फाइंड, हमें अब क्या फाइंड करना है? we want to find, हमें फाइंड क्या करना है, du by dv, but we don't know du by dv, so apply the chain rule here, du by dx we can find, क्योंकि ये वाला u क्या है, फंक्शन ऑफ x, सो du by dx हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली चेन रूल के हिसाब से dx by dv लिखना पड़ेगा, लेकिन इसका भी नहीं निकाल सकते विथ रिस्पेक्ट टू b। सो हम क्या कर सकते हैं, du by dx डिवाइडेड बाय
डी बी बाई डी एक्स। अब दोनों का निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आ गया। सो यहाँ से डेट इम्प्लाइज डी यू बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, व्हाट विल बी द डी यू बाई डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, पहले स्क्वायर है 2 आ जाएगा, उसके बाद साइन एक्स और साइन एक्स का आता है कॉस एक्स, एल यहाँ पर बी का आ जाएगा डी बी बाई डी एक्स। डी बी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, ई पावर कॉस एक्स है, पहले कॉस एक्स को एक्स के जैसा कंसिडर कर लो, तो ई पावर एक्स का होता है ई पावर एक्स से होता है, कॉस एक्स होगा, अगेन डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, दैट इज माइनस साइन एक्स ई पावर कॉस एक्स। सो हमें डी यू बाई डी एक्स एंड डी बी बाई डी एक्स मिल गया। सो पुट द वैल्यू हियर, पहले डी यू बाई डी एक्स पुट करो, क्या है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, एंड डी बी बाई डी एक्स पुट करो माइनस साइन एक्स ई पावर कॉस एक्स। सो साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आएगा 2 cos x बाई ई पावर cos x, which is our final result. I think you guys get it. Okay, there's a few more numerical as a homework for you. Check the question properly. First question is given as differentiate with respect to x. यहाँ पर क्या दिया हुआ है, log of x to the power log x. And check the second question. Find dy by dx if y equal to sin inverse x plus sin inverse under root 1 minus x square. तो x should be lies between 0 to 1. And third one, cos of y equal to x cos of a plus y, comma with cos of a unequal to plus minus 1. Prove that dy by dx equal to cos square a plus y by sin a. That we need to prove. Okay, do submit the homework before the next class. Okay, thank you.